दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं पढ़ूंगी संविधान का भाग 16। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 16 बताता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्या हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहा है 330 अनुच्छेद? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, चले पढ़ें। पार्ट 16 Special provisions relating to certain classes. Special provisions relating to certain classes. 330 article says about the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People. 330 article says about the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People. Number 1, seats shall be reserved in the House of the People for A. the scheduled castes and scheduled tribes. The scheduled tribes in the autonomous districts of Assam. Number C, the scheduled tribes in the autonomous districts of Assam. Number 2, the number of seats reserved in any state or union territory for the scheduled castes or scheduled tribes under clause first shall be as nearly as may be the same proportion to the total number of seats allotted to the state or union territory in the House of the People as the population of the scheduled castes in state or union territory or of the scheduled tribes in the state or union territory or part of the state or union territory as the case may be in respect of which seats are so reserved bears to the total population of the state or union territory. Number 3, notwithstanding anything contained in clause 2nd, the number of seats reserved in the House of the People for the scheduled tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to the state to that state a proportion not less than the population of the scheduled tribes in the state in the said autonomous districts bears to the total population of the state. Explanation in this article and in this article 332, the expression population means the population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published, provided that the reference in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been
published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published be construed as a reference to the 2000 first census 2000 first census। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ इस अनुच्छेद को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है आरक्षण के बारे में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। नंबर 1 लोकसभा में नंबर का अनुसूचित जातियों के लिए। नंबर का असम के स्वशासी राज्यों शासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर। नंबर का असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए। और नंबर का असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। नंबर 2 खंड 1 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य की अथवा उस संघ राज्य की अथवा उस राज्य या संघ राज्य की उस राज्य या संघ राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। नंबर 3 खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। इसका स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। तो ये तो अनुच्छेद बताता है कि लोकसभा में जो लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में ये अनुच्छेद बात करता है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय कौन लोग हैं जिन समुदायों का प्रतिनिधित्व उसकी बात करूंगी। 331st रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।